السلام علیکم ویورس. وہ جو عشق تھا ناول کی ایپیسوڈ 5 ساؤنڈ کے کچھ پرابلم کی وجہ سے صحیح سے نہیں سنائی دے رہی تھی، اس لیے پارٹ 5 کو اور ایک بار میں اپلوڈ کر رہی ہوں. آپ کو کیسی لگتی ہے یہ ناول؟ اپنی رائے مجھے ضرور دیں. اب سنتے ہیں آگے. پچھلے چند روز سے وہ مسلسل خواب میں آ رہی ہے. میں بہت زیادہ گلٹ محسوس کر رہا ہوں. سچ کہوں تو بہت پچھتاوا ہے. کبھی کبھی خود سے گھن آنے لگتی ہے. میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اس کی موت پلان کرنے کا، مگر صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی کہ خود کو بچانے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارنا پڑا. زارون نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا جسے چھپانے کے لیے تم اتنا گر گئے؟ وہ ہرٹ ہوئی. زارون نے کرو سے آنکھیں مینچ لی. بہت کچھ ہو گیا تھا. ضمیر مردہ ہو تو انسان شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے. میرا ضمیر بھی مردہ تھا. اپنی دولت اور مردانگی کے جام میں کوئی گناہ نہیں لگتا تھا مجھے. نایاب کے دل میں میرے لیے کیا تھا یہ مجھے بھی نہیں پتا. پتا ہوتا بھی کیسے؟ میں تو شروع سے صرف تمہارے بارے میں سوچتا تھا. میری نظر میں اس تعلق کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی جو بڑوں نے میرے اور نایاب کے درمیان باندھ دیا تھا. اسی لیے یونیورسٹی میں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا تھا. آدھی سے زیادہ یونیورسٹی کی لڑکیاں خود میرے پیچھے تھیں. غزالہ کا شمار بھی انہی لڑکیوں میں سے تھا. نایاب روز یہ سب دیکھتی اور برداشت کرتی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی. مجھے اس کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی. یونیورسٹی میں شروع کے دنوں میں وہ پریشان رہتی، مگر میں نے اس کی مدد نہیں کی. غزالہ کے کزن نے ایک روز سب کے سامنے اس کی بے حد بے عزتی کی، مگر میں نے اس کا منہ توڑنے کی بجائے سب کے سامنے اس کا تماشا دیکھا. ہمیشہ اپنے رویے سے اس کا دل توڑا، اس پر الزام لگائے، اپنی ہر عیاشی کا ملبہ بھی اس پر ڈال دیا، صرف اس لیے کہ میں مرد تھا. مجھے ہر گناہ کی اجازت تھی. وہ عورت تھی اور میری نظر میں اسے یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا. رات کے اس پہر اس کے چہرے پر جو درد رقم تھا، محراب نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی اور وہ بولتا رہا. غزالہ کے ساتھ میرے غلط تعلقات کی خبر ساری یونیورسٹی کو تھی. اس کے باوجود اس روز جب نایاب نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حویلی میں سب کو بتانے کی دھمکی دی تو میں اس کی یہ ذرات برداشت نہیں کر سکا. غرور و تکبر نے میری مت مار دی تھی. اسی لیے وہ جیسے ہی چھٹی پر حویلی آئی میں نے یہ معاملہ غزالہ کے سامنے رکھا اور غزالہ نے مجھے بھی یہ راہ دکھائی کہ ہمیشہ کی طرح میں اپنا گناہ اس پر ڈال دوں. اس کام کے لیے اس نے اپنے کزن کو راضی کیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں میرے بارے میں کسی کو کچھ بتاتی، میں نے اور غزالہ نے اس کے کزن اور اپنے دوست سائم کو حویلی بلا لیا. نایاب جاگ رہی تھی. حویلی کی اونچی دیواروں اور خون خار کتوں سے میں ہی اسے بچا کر نایاب کے کمرے تک لایا تھا. میں نے ہی نایاب کے کمرے کی نشاندہی کی تھی. سارا پلان میرا تھا اور ویسے ہی کامیاب رہا جیسے میں نے سوچا تھا. حویلی کے بزرگوں کی آنکھوں پر غصے کے طوفان نے پٹی باندھ دی تھی. اس وقت وہی دیکھا گیا جو میں انہیں دکھانا چاہتا تھا، وہی سنا گیا جو میں سنانا چاہتا تھا. راتوں رات اس کی موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں ملا. میں تھک گیا ہوں یہ سب سوچ سوچ کر. میں ذلت کے گڑھے میں گر گیا ہوں محراب. مجھے اس کی بد دعا لگ گئی. وہ آزردہ تھا جب اسے دنیا سے گئے بھی مہینوں ہو گئے تھے. محراب کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا. نایاب کے ساتھ ہوئے ظلم کی کہانی نے اس کے زخم جیسے پھر سے ہرے کر دیے تھے. وہ اٹھی اور نفرت سے بھرپور ایک نگاہ اس کے مفلوج وجود پر ڈالتے ہوئے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. زارون اس کی نفرت بھری نگاہ پر کرب سے لب بھینچتا شدت سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا.
ایک درد پچھتاوے کی صورت دل کے اندر سر اٹھا رہا تھا تو ایک درد نے محبت کی تکلیف کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے باہر کے مکمل وجود کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اب وہ کہاں جاتا؟ سانس تنگ ہو رہی تھی، گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگلے روز اس کا چیک اپ تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ہسپتال نہیں گئی بلکہ اسے عائرہ کے ساتھ ہسپتال بھجوا دیا۔ زارون کے آپریشن اور علاج پر اچھا خاصا خرچ آیا تھا۔ تمام روپیہ محراب نے اس کے اکاؤنٹ سے ادا کیا۔ اب بھی وہ اس کے اکاؤنٹ سے ہی سارا خرچ کر رہی تھی، مگر کب تک؟ جارون کے بھائیوں اور دوستوں نے اس کی طرف سے مکمل آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اتنے دنوں میں کوئی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ خرچہ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی پریشانی میں الجھی وہ گھر پر بھی مختلف کاموں میں مصروف اس کی گھر واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ عائرہ کے ساتھ واپس آیا، بجھا بجھا سا، اداس، بے رونق چہرہ۔ محراب نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زارون کو مکمل نظر انداز کر کے اس نے عائرہ سے پوچھا۔ جواب میں وہ اپنی وہیل چیئر گھسیٹتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ نہیں، پہلے سے بہتر ہیں تمہارے شوہر، اور جو رپورٹس باہر بھجوائی تھی نا، ان کا بھی اچھا جواب آیا ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ دوبارہ کب چیک اپ کروانا ہے؟ اگلے ہفتے۔ ٹھیک ہے۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کس بات کی؟ تمہارے شوہر کی رپورٹس اچھی آئی ہے، اس کا باہر علاج ہو سکتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر پھر سے چل سکتا ہے۔ ہاں، بات تو خوشی کی ہے، مگر میرا دل خوش نہیں ہے۔ وہ جیے یا مرے میری بلا سے۔ ایسا کیوں؟ عائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن کا قاتل ہے، اس لیے۔ محراب نے اسے بتایا۔ واٹ؟ عائرہ کو شوق لگا۔ محراب نے مختصر لفظوں میں اس کے ظلم کی مکمل کہانی اسے سنا دی۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، ایسے کون کرتا ہے؟ ایسا زارون عبدالرحیم کرتا ہے۔ پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ سب سے پہلے تو تمہیں اس سے کھلا لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی رل جائے گا اور میں بھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں، معاف نہیں کیا، بس قسمت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، زندگی ایسے بسر نہیں ہوتی۔ زندگی بسر کرنے کی خواہش اب رہی بھی نہیں۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پلکوں پر آئی نمی کو صاف کیا۔ عائرہ چند لمحوں تک کچھ نہ بول سکی، تبھی اس نے پوچھا، تم اس روز کسی جاب کا ذکر کر رہی تھی؟ ہاں، میرے انکل کی فیملی ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔ انکل ریٹائرڈ کرنل ہے، ایک بیٹی تھی، ان کی شادی ہو گئی۔ اس سے چھوٹا ایک بیٹا ہے، اس نے کسی عیسائی عورت سے جرمنی میں شادی کر لی۔ کچھ عرصہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہا، پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب وہ صاحبزادے پاکستان آ رہے ہیں تو انکل چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے انہیں کوئی اچھی کک مل جائے تاکہ گھر کا نظام اچھے سے چل سکے۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو نہیں پتہ، لیکن 25-30 سے اوپر ہی ہوگی۔ تو پھر تم بات کرو نا اپنے انکل سے میرے لیے۔ کر لوں گی، پہلے تم آنٹی سے بات کر لو، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی انکل سے مل کر ساری بات کر لوں گی۔ بہت شکریہ عائرہ، تمہارے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ بس جانے دو، اب چلتی ہوں میں، انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عائرہ اسی وقت چلی گئی۔ رات کے کھانے کے دوران محراب نے مریم بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امی، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں بولو۔ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر انہوں نے محراب کی جانب دیکھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں کسی کے گھر، بس چند گھنٹوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ محراب نے امی کو جاب کے متعلق بتایا۔ کیوں؟ ضرورت ہے امی،
ज़ारून के ऑपरेशन पर बहुत पैसे लगे हैं, इलाज भी चल रहा है, उसे बाहर भी भेजना है। फिर आप भी बीमार रहती हैं, आपकी भी खुराक और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। ज़ारून के अकाउंट में अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही होगा। हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया बेटा, और फिर ज़ारून को पता चल गया तो वैसे भी जान ले लेगा तुम्हारी। अब वो जान लेने की पोजीशन में नहीं रहा अम्मी। वैसे भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा मत कहो, अब जैसा भी है तुम्हारा शौहर है वो। उन्होंने मेहराब को समझाना चाहा। वो मेरी बहन का कातिल भी है अम्मी। मैं सारी उम्र उसका ये गुनाह माफ़ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, मगर वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। जिसने दुनिया में जो भी अच्छा बुरा किया उसका हिसाब उसे आखिरत में अल्लाह को देना है। तुम अपना और उसका रिश्ता देखो, तुम्हारी उसकी वजह से कोई पकड़ न हो। इस बात का ध्यान रखना बच्ची। मेहराब के सर पर हाथ रखते हुए वो उसे समझा रही थी। वो महज अज़बात में सर हिलाकर रह गई। रात को मेहराब कमरे में आई तो ज़ारून जाग रहा था। उसने उसके हिस्से का खाना उसके करीब ही रखी मेज़ पर रखते हुए कहा, खाना खा लो, दवा लेनी है तुम्हें। भूख नहीं है मुझे, बहुत मध्यम लहजे में उसने उसे जवाब दिया। भूख नहीं भी है तब भी खा लो, दवा लेनी है तुम्हें। नहीं लोगे तो ज़ख्म कभी ठीक नहीं होंगे। कोई परवाह नहीं। हाँ, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी? मज़े से बैठे बिठाए हर चीज़ जो मिल रही है। जब तक चलते फिरते थे नाक में दम किए रखा। अपाहिज होकर बैठ गए हो तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल कर दी है। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेहराब तल्ख लहजे में बोली। ज़ारून का चेहरा सुर्ख हुआ। चुप हो जाओ, चिल्लाती हुई औरतें मुझे नहीं पसंद। तुम्हारी पसंद? उसका लहजा मुझीद सख्त हुआ। ज़ारून ने चुप साध ली। तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सारी उम्र बैठकर तुम्हारी देखभाल करती रहूं। पहले दिन से अब तक जितने भी पैसे तुम्हारे इलाज पर लगे हैं सब तुम्हारे एटीएम से निकले हैं। डॉक्टर फरहत ने तुम्हारी जो रिपोर्ट्स बाहर भिजवाई थी उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। अगर तुम इलाज के लिए बाहर जाते हो तो बहुत बड़ी रकम तुम्हारे पास महफूज होना ज़रूरी है। बताओ क्या करूं मैं? किससे जाकर भीख मांगूं तुम्हारे लिए? उसने बमुश्किल अपने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। ज़ारून ने चंद पल उसे खासी तवज्जो से देखा, फिर पास बुला लिया। इधर आओ मेरे पास। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि वो शदीद कशमकश का शिकार होने के बावजूद उठकर उसके पास चली आई। ज़ारून ने उसके पास आने पर उसे हाथ बढ़ाकर अपने साथ लगाया। ज़िंदा हूँ, अभी मफलूज हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ जो इतनी मायूस हो गई हो तुम ज़िंदगी से। वो नर्म लहजे में बोला। मेहराब का दिल बेसाख्ता पूरी शिद्दत से धड़क उठा। तुम क्या कर सकते हो अब? बहुत कुछ कर सकता हूँ अब भी, बस तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। मुझे तुमसे नफ़रत है ज़ारून। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस नफ़रत को मोहब्बत में बदल दूँगा मैं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, बेजारी से कहते हुए वो उससे अलग हुई, मगर ज़ारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। उसका लहजा गंभीर था। मेहराब लब भींच कर रह गई। देखो बाहर कितनी ठंड हवा चल रही है। अभी माजूर न होता तो तुम्हें अपने साथ लिए लॉन में चला जाता। हम देर तक वॉक करते, मगर फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसा करो, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। तुम धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियाँ चलाओ, मुझे नींद आ जाएगी। मेहराब लजाहत से उसके हाथ थामते हुए वो कितनी मन्नत से कह रहा था। मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, प्लीज़। उसका हाथ झटकती वो उसके पास से उठकर बेड की दूसरी जानिब आ गई। ज़ारून उसकी इस दर्जा बेइतनाई पर महज बुत बना उसे देखता रह गया। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं।
ढूंढने उसको चला हूँ जिसे पा भी न सकूँ। मेहरबां हो के मुझे बुला लो चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। लफ्ज़ों के थके लोग एक मुद्दत से कुछ नहीं कहते, दर्द दिल में छुपा के रखते हैं। आँख वीरां है इस तरह उनकी, जैसे कुछ भी नहीं रहा उनमें। न कोई अश्क न कोई सपना, न कोई गैर न कोई अपना। पपड़ियाँ होंठ जमी जैसी, जैसे सदियों की प्यास का डेरा, जैसे कहने को कुछ नहीं बाकी, दर्द सहने को कुछ नहीं बाकी। कुछ भी पहचानते नहीं जैसे, कौन है जिससे प्यार था इनको। एक बेनाम सी रफ़ाकत थी, सूखी धरती को अबर से जैसे, ऐसी अनजान सी मोहब्बत थी। रंग भरते थे सादा कागज़ पे, अपने ख्वाबों को लफ्ज़ देते थे। अपनी धड़कन की बात लिखते थे, दिल की बातों को मान लेते थे। चांदनी की ज़ुबान समझते थे, एक मुद्दत से कुछ नहीं कहते थे। अपने ख्वाबों से थक गए जैसे, उसकी आँखों से थक गए जैसे, ऐसे खामोशियों में रहते हैं, अपने लफ्ज़ों से थक गए जैसे। ज़ारून नोट कर रहा था, मेहराब के लबों पर मुसलसल चुप थी। वो अस्पताल से 1 हफ्ता हुआ घर आया था, मगर हवेली में से कोई उसका हाल पूछने तक नहीं आया। यहाँ तक कि उसकी सगी माँ भी नहीं, और उस बात का उसे कितना दुख था ये सिर्फ वही जानता था। एक छोटे से हादसे ने उस पर उसकी हकीकत खोल कर रख दी थी। वो जानता ही नहीं था कि हवेली में क्या हालात चल रहे हैं। इलाके के सरदारों ने हवेली को बॉयकॉट कर दिया था। ज़ारून जो बात अपने घर के अफराद से छुपा कर रखना चाहता था, वो बात खुशबू की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों की इज्जत दांव पर लग गई थी। सरदार अब्दुल लतीफ़ ने बेगम अब्दुल लतीफ़ पर भी ये शर्त आयत कर दी थी कि अगर वो ज़ारून से राबता रखेंगे तो उन्हें हवेली से दस्तबरदार होना पड़ेगा। बड़े बेटों के हालात और छोटे बेटे पर लगी पाबंदी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों को वहाँ से नकल मकानी के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ऐसे में ज़ारून की खबर कौन लेता, उसकी मदद कौन करता। कीमती दवाएं, टेस्ट और चेकअप पर बैंक अकाउंट तेज़ी से खाली हो रहा था, मगर ज़ारून को कहाँ एहसास था इन बातों का। उसे अब भी सिर्फ अपनी पसंद नापसंद से मतलब था। इस रोज़ शाम में जब वो रात का खाना पका रही थी, आयरा चली आई। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, तुम सुनाओ? प्याज काट कर एक तरफ रखते हुए उसने हाथ मिलाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दिया है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। वाकई? मेहराब को जैसे यकीन ही नहीं आया था। वाकई। अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। मिलने के बाद सारे मामलात तय कर लेंगे। कब मिलना होगा? जब तुम चाहो। कल? हाँ, कोई मसला नहीं। कहाँ मिलेंगे, ऑफिस या घर? शाम 7 बजे तक ऑफिस में ही मिलेंगे। हाँ, 7 बजे के बाद अगर तुम चाहो तो हम उनके घर चले जाएंगे। नहीं, शाम में अम्मी और ज़ारून को छोड़ कर जाना मुश्किल है मेरे लिए। हम कल दिन में ही चलेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। आंटी या ज़ारून भाई को कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ है, मगर मुझे परवाह नहीं। अभी जिन हालात का मुझे सामना है, ज़ारून उसे नहीं समझ सकता। फिर तो वो गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसने जैसे ठान ली थी। आयरा कंधे उचका कर रह गई। अगले रोज़ ज़ारून और मरियम बेगम को नाश्ता कराने के बाद कपड़े बदल कर वो आयरा के साथ हमदानी इंडस्ट्री चली आई थी। दिन के 11:30 हो रहे थे। हल्की हल्की निखरी हुई धूप जिस्म को राहत बख्श रही थी। तकरीबन 30-35 मिनट का सफ़र तय करके वो लोग इस बुलंद व बाला इमारत के सामने पहुंच गई थी, जहां इस वक्त उन्हें जाना था।
आयरा ने वसी पार्किंग में गाड़ी पार्क की तो वो पूछे बगैर ना रह सकी, उनका ऑफिस तो बहुत बड़ा है, ये मुझ जैसी अनपढ़ को भला क्यों रखेंगे जॉब पर। आयरा उसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुराई। तुम अनपढ़ हो तो और क्या, यहाँ तो बहुत क्वालिफाइड लोग जॉब करते होंगे, आला डिग्री होल्डर। हाँ, मगर तुम्हें तो जॉब नहीं करनी ना, तो फिर एवी टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। उन्हें एक अच्छी साफ़ सुथरी बेहतरीन खाना पकाने वाली शेफ़ की ज़रूरत है, किसी अकाउंटेंट या सेल्स गर्ल की नहीं, समझी। आयरा की बात में वज़न था। वो सर हिलाकर गाड़ी से निकल आई थी। पार्किंग एरिया क्रॉस करने के बाद वो इमारत में दाखिल हुई तो और भी ज़्यादा मुताशिर हुई। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई थी। आयरा उसे साथ लिए लिफ्ट की तरफ आई, फिर उसका हाथ थाम कर लिफ्ट में सवार हो गई। 5वीं फ्लोर पर हमदानी साहब का ऑफिस था। लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकी तो बाहर निकलते ही आयरा ने उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। तुम यहीं रुको, मैं रिसेप्शन से पूछ कर आती हूँ कब तक मिल सकेंगे हम अंकल से। मेहराब के असबात में सर हिलाने पर वो आगे बढ़ गई। रिसेप्शन न जाने किस तरफ थी, वो बेसाख्ता खुद को नर्वस महसूस करने लगी। आयरा ने रिसेप्शन पर अपना तारीफ़ कराया तो उसे फौरी मुलाकात की इजाज़त मिल गई। भारी ग्लास डोर अंदर धकेल कर वो मुकम्मल एतमाद से कमरे में दाखिल हुई। अस्सलामो अंकल। अस्सलामो अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। हमदानी साहब सारा काम रोक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो उनके सामने रखी कुर्सी पर टिक गई। क्या बना, बात हुई उस लड़की से? जी अंकल, सारी बात हो गई है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। क्या बताया है उसे? हमदानी साहब के लहजे में बेचैनी टपक रही थी। आयरा मुस्कुरा दी। वो भी बता दूंगी, पहले आप उसे एक नज़र देख लें, अगर ठीक लगे तो डील पक्की, नहीं तो कोई और देख लूँगी। ठीक है, कितना पढ़ी है? ग्रेजुएशन किया है। खानदान? खानदान अब कोई नहीं, फैमिली टूट गई है उसकी। सोशल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुएं का मेंढक है। इसीलिए तो आपसे बात की, क्योंकि आपने कहा था लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे घर की 4 दीवारी के सिवा कुछ ना पता हो। गुड, मगर उसकी शादी का कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। उसकी आप फिक्र ना करें, माजूर शौहर है उसका, कुछ भी हो जाए वो उसके पीछे नहीं आ सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनकी तलाक हो जाए। अच्छा, यही बेहतर रहेगा। चलें, ठीक है, फिर मैं उसे लेकर आती हूँ। आप बस मेरे 2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का इंतज़ाम करें। श्योर। इस बार हमदानी साहब मुस्कुरा दिए थे। इधर मेहराब आयरा के बगैर वहाँ खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रही थी। उसके लिए वो बुलंद व बाला इमारत और वहाँ काम करते सैकड़ों लोग बिल्कुल नए थे। मरियम बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसके घराने की किसी लड़की के लिए ऐसी मुलाजिमत करना आसान नहीं था। वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि कोई हवा के रथ पर सवार तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके करीब से यूं गुज़रा कि वो मुश्किल गिरते गिरते बची। उस ऊपर से उसने अपना गुस्सा भी उस पर उतारा। अंधी हो, नज़र नहीं आता, क्यों भिखारियों की तरह रास्ते में खड़ी हो। मेहराब जो पहले ही लड़खड़ाने पर खौल रही थी, अब उसके अल्फाज ने गोया उसे आग लगा दी थी। तभी वो बोली तो उसके लहजे में गोया सोलों सी तपिश थी। ज़ुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो इसी ज़ुबान को काट कर कुत्तों को खिला दूंगी मैं। मुझे नहीं जानते तुम? अच्छा, चलो काटो, मैं भी देखता हूँ कितनी पावर है तुम में। वो जो शक्ल से ही कोई अय्याश लग रहा था, अब शदीद इश्तियाल में उसके मुकाबिल खड़ा उसे चैलेंज कर रहा था। इर्द गिर्द जमा हुए लोग गोया फ्रिज हो गए थे। मेहराब को अपनी जान मुश्किल में फंसती हुई महसूस हुई।
तभी उसने रुख फेर लिया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे बदमाशों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। बदमाश किसे कहा तुमने? वो जो कोई भी था इस वक्त उसके लिए वाकई वबाल बजान बन गया था। मेहराब का बाजू सख्ती से दबोचते हुए वो गुर्राया। तभी आयरा वहाँ आई। ये क्या हो रहा है? वो हैरान हुई। मेहराब ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। पता नहीं कौन पागल है, खामखा गले पड़ रहा है मेरे। शट अप, इस बार वो चिल्लाया। आयरा ने अपना सर पीट लिया। सॉरी शहरयार भाई, मेरी दोस्त है, आपके बारे में नहीं पता उसे। चुप करो आयरा, क्या पता नहीं है? मिनिस्टर लगा है ये कहीं पर जो पता नहीं है उसका। जज्बाती वो हमेशा से थी। इस बार आयरा ने उसका हाथ दबाया। चुप करो तुम, चलो यहाँ से। तकरीबन खींचते हुए वो उसे वहाँ से दूर ले आई थी। शहरयार हमदानी जबड़े भींचता उसे गुस्से से देखता आगे बढ़ गया। एक तो उसका मूड अपनी बेटी की वजह से पहले ही ऑफ था, ऊपर से इस लड़की ने मज़ीद ख़राब कर दिया था। आयरा अब मेहराब पर गुस्सा कर रही थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें शहरयार भाई से उलझने की? मुझे ज़रूरत थी। वो टकराया था मुझसे तो क्या हुआ, नज़रअंदाज कर देती। तुम्हें पता भी है वो कौन है? कौन है? हमदानी अंकल के इकलौते बेटे। अभी कल ही बिजनेस ट्रिप मुकम्मल करके वतन वापस लौटे हैं। बेटी बहुत बीमार है, उसकी वजह से परेशान है। तो मैं क्या करूं? मुझसे ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा छोड़ो, चलो। हमदानी अंकल इंतज़ार कर रहे थे। वो फ़िलहाल उससे बहस नहीं करना चाहती थी। शाहज़र हमदानी चूँकि उससे मेहराब के बारे में सारी मालूमात ले चुके थे, लिहाजा उससे चंद रिवायती सी सवाल पूछकर उसे जॉब की मंजूरी दे दी। तनख्वाह पुरकशिश थी। मेहराब का दिल बेहद हल्का फुल्का हो गया था। वो वापसी पर आयरा का शुक्रिया अदा करती न थक रही थी। उस आयरा का जिसने उसकी दोस्ती और उसके एतमाद को किसी रईस के हाथों 2 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। कहाँ गई थी तुम? मरियम बेगम को जॉब की खुशखबरी सुनाकर वो ज़ारून को दवा देने आई तो उसने पूछ लिया। सुर्ख नम आँखें उसकी बेचैनी और इज़्तिराब की गवाह थीं। मेहराब ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। मेज़ पर पानी का गिलास रखते हुए उसका दिल ज़ोर से धड़का था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोला। मेहराब को हिम्मत करनी पड़ी। जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और जॉब मिल गई। झूठ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए सच बोल दी। ज़ारून की आंखों में चंद लम्हों में ही खून उतर आया था। मना किया था ना तुम्हें उस काम के लिए, फिर क्यों गई? उसका ज़ब्त जैसे जवाब दे रहा था। मेहराब ने रुख फेर लिया। तुम्हारे मना करने से मसाइल हल नहीं होते ज़ारून। मसाइल हल नहीं होते तो अपना सौदा करोगी तुम, बोली लगवाओगी अपनी। वो चिल्लाया इतनी शिद्दत से कि मेहराब को बेसाख्ता अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। ज़ुबान संभाल कर बात करो। खुद को बेचा नहीं है मैंने। उसे भी गुस्सा और रोना एक साथ आया। ज़ारून ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी सारी दवाएं ज़मीन पर गिरा दीं। उससे बेहतर था तुम मुझे कोई किस्कॉल ला देती और मैं बाहर जाकर भीख मांग लाता। अगर इतने ही बुरे हालात हो गए हैं हमारे। वो तकलीफ़ में था मगर मेहराब उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। तभी आंसू पोंछते हुए तल्खी से बोली, ये सब तुम्हें हालात बिगाड़ने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर। फ़ायदा उठा रही हो तुम मेरे बिगड़े हालात का। नहीं, अपने नसीब को कोस रही हूँ जो तुम्हारे हत्थे चढ़ गई। तुम मत कोसो, क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी को जूते की नोक पर रखता हूँ जो औरत की कमाई पर बसर हो। कहने के साथ ही उसने मेज़ पर रखी छुरी उठा ली जो मेहराब ने फल काटने के लिए साथ रखी थी।
इस लम्हे ज़ारून की हरकत ने गोया उसे उसके पाँव तले से ज़मीन ही निकाल दी थी। पागल हो गए हो, छोड़ो उसे। छुरी उसके हाथ से छीनने के लिए उसने उसे काबू करना चाहा, मगर वो कहाँ काबू आने वाला था। वो तो इस लम्हे गोया बिफरा हुआ समंदर लग रहा था। पीछे हट जाओ तुम, जान छुड़ा रहा हूँ तुम्हारी खुद से। नहीं, तुम्हें ताया अब्बू की कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी छुरी उसके हाथ से छीन लेने की। इसी कोशिश में कब उसका बाजू जद में आ गया, उसे पता न चला। खून की एक तेज़ धार ने ज़ारून के दोनों हाथ रंगीन कर दिए थे। उसका सारा जुनून वहीं थम गया था। मेहराब का चेहरा अब तकलीफ़ के हिसार में था। उसने बेकरारी से उसका बाजू थाम लिया। क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो तुम मेहराब? कितनी अजियत थी उसकी आँखों में और उसके लहजे में। उसने बस एक नज़र उसे देखा, फिर आहिस्ता से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल दिया। तुम हमेशा मेरे लिए तकलीफ़ का बाज़ बनते हो ज़ारून अब्दुल रहीम। काश तुम पैदा ही न हुए होते। रोती हुई सी वो उसका दिल नोच गई थी। ज़ारून ने बहुत बेबसी से मेज़ पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। उस रात खाना मरियम बेगम ने पकाया था। आयरा आई तो वो हाथ रुमाल में लपटे बैठी थी। वो चौंकी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही मामूली सी चोट लग गई। ओह, फिर तो तुम कल से जॉब पर नहीं जा सकोगी। हाँ, अभी 2-3 दिन मुश्किल है। ज़ारून भाई ने कोई हंगामा तो नहीं किया? नहीं, बस वो चुप है। चलो, ये भी अच्छा है। अब देखो ना, आजकल के दौर में कौन लड़की ऐसी होगी जो एक माजूर मुफलिस मर्द को अपने सर पर सवार रखकर खुद को दरबदर के धक्के खाती होगी। भाई, मैं तो कहती हूँ इस सिलसिले में तुम्हारी सौतन तुमसे ज़्यादा समझदार निकली। खुला का केस दायर कर दिया उसने। करती रहे, मेरा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। हो भी नहीं सकता। उसे ज़ारून भाई की दौलत से मोहब्बत थी और तुम्हें उनकी ज़ात से। फ़र्क तो है ना। तुम्हें किसने कहा मुझे उसकी ज़ात से मोहब्बत है? तो फिर उन्हें साथ रखने का मकसद? कोई मकसद नहीं, सिर्फ रिश्ता निभा रही हूँ मैं, बस। इसका मतलब है अगर तुम्हें ज़ारून भाई से कोई बहुत बेहतर शख्स मिल सकता है तो तुम उन्हें आज़ाद कर दोगी, है ना? मुझे ख्वाहिश नहीं है किसी बेहतर शख्स की। और प्लीज़ टॉपिक तब्दील करो, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर अंकल को बता दूँगी तुम अभी 2-3 दिन नहीं आ सकोगी। बैठ जाओ, खाना खा कर जाना। नहीं यार, अभी भूख नहीं है। चलती हूँ अब, बाय। वो जल्दी में थी। मेहराब ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। मरियम बेगम को उसने खाना खिला दिया था। उनके जागने तक वो उनके साथ ही रही। उनके सोने के बाद वो ज़ारून के लिए खाना निकाल कर उसके कमरे में आई। ज़ारून बिस्तर पर टेक लगाए बैठा सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतार रहा था। मेहराब ने एक नज़र उसे देखा, फिर खाना मेज़ पर रख दिया। खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? कल से कुछ नहीं खाया तुमने। ऐसे तो ज़ख्म ठीक नहीं होंगे। कल चेकअप के लिए भी जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी माँ बनना बंद करो तुम। वो जला बैठा था। मेहराब पास चली आई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों नहीं सुकून से ज़िंदगी गुजारते? अपने इसी मिजाज की वजह से सब कुछ गंवा दिया तुमने। अब भी अकल नहीं आई? अब भी वही तनतना बाकी है? तो क्या करूं? बेगैरत बन जाऊं? अपनी बीवी को लोगों के घरों में भेजकर खुद दलालों की तरह घर बैठे उसकी कमाई खाऊं? यही चाहती हो तुम?
کیا غلط ہے اس میں؟ ہزاروں لڑکیاں جاب کرتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، سب شوقیہ تو نہیں کرتی نا۔ ان کے حالات مجبور کرتے ہیں انہیں گھر سے باہر قدم نکالنے پر۔ میرے بھی ہاتھ اس وقت خالی ہیں، میرے بھی حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے سب چھوڑ دوں گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے جیتے جی تم کسی بھی مجبوری میں گھر سے باہر کمائی کرنے کے لیے نہیں جاؤ گی بس۔ تو ٹھیک ہے، تم خرچہ اٹھاؤ، میں بیٹھ جاتی ہوں گھر۔ اٹھا لوں گا، اپنے دوستوں سے بات کی ہے میں نے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تمہیں میرے علاج کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فی الحال علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایسے کیوں ہو زارون؟ اتنے ضدی کیوں ہو تم؟ وہ جچ ہوئی۔ زارون نے لب بھینج لیے۔ بس ایسا ہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم خود ہوگے، برہمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ زارون نے سر پھر سے پیچھے تکیے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اگلے 2 دن خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تیسرے دن رات میں زارون کی بائیں ٹانگ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ ضبط کے باوجود کراہ کر رہ گیا۔ رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک اس نے مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے رات گزاری تھی۔ اوپر سے غزالہ نے الگ وقت ڈال دیا تھا۔ عدالت میں خلا کے کیس کے ساتھ اس نے اپنے اور اپنے بچے کے نان نفقہ کے لیے بھی کیس دائر کر دیا تھا۔ عدالت میں جمع کرائی گئی درخواست کے مطابق وہ امید سے تھی اور اسے اپنے بچے کے حق کے لیے اس کے باپ یعنی زارون عبدالرحیم سے پیسہ درکار تھا۔ زارون کو یہ خبر اپنے دوست کے ذریعہ سے ملی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز فنا کر ڈالے۔ محراب ناشتہ لے کر آئی تو وہ غزالہ کا نمبر پریس کر رہا تھا۔ پچھلی پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں سویا تھا۔ ڈیل جاری تھی مگر وہ جان بوجھ کر اس کی کال کاٹ رہی تھی، پک نہیں کر رہی تھی۔ زارون کا چہرہ اس لمحے جیسے کسی انگارے سے کم نہیں تھا۔ بار بار کوشش کے بعد بالآخر غزالہ نے اس کی کال پک کر لی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو مجھے؟ کال پک کرتے ہی وہ غرائی۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں گویا انگاروں سی تپش تھی۔ تم ایک کمظرف گھٹیا لڑکی ہو، مجھے اس بارے میں 1% بھی شک نہیں تھا۔ پھر ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے طیش پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اف، کتنے اچھے لگ رہے ہو یوں بے بسی سے دھمکی دیتے ہوئے۔ لگتا ہے ابھی تک عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ غزالہ کو اچھا لگا، تبھی مزے سے بولی، روتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، اپنے پاؤں میں بٹھا کر۔ کیوں؟ یاد نہیں تمہیں اس روز گاڑی میں کتنی حقارت اور غرور سے تم نے کہا تھا کہ میں کسی کو تمہارے ساتھ اپنے نکاح کا نہ بتاؤں، نہیں تو تم ایک پل نہیں لگاؤ گے مجھے میری اوقات یاد دلانے میں۔ اب بتاؤ تمہیں تمہاری اوقات یاد آئی کہ نہیں؟ مرچ مسالہ لگتا اس کا لہجہ زارون کو پاتال کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گیا تھا۔ ہمیشہ میں نے تمہاری ضرورت پوری کی اور بدلے میں ہمیشہ تم نے مجھے ذلیل کیا۔ اب وقت بدل گیا ہے زارون عبدالرحیم، ذلیل ہونے کی باری اب تمہاری ہے۔ جتنا وہ اس کا خون جلا سکتی تھی جلا رہی تھی۔ زارون کو اس لمحے سے پہلے کبھی اپنی معذوری پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو جوتے تلے مسل کر رکھ دے۔ ٹھیک ہے، جتنا مرضی ذلیل کر سکتی ہو کرو، کھلی چھوٹ ہے تمہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جس دن وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تمہیں ساری دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہو لو، پھر دھمکی بھی دے دینا۔ وہ پھر ہنسی۔ زارون نے موبائل غصے سے سامنے دیوار پر دے مارا۔
اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ اتنا بے بس ہو جائے گا کہ خود پر ہنسنے والوں کو سزا بھی نہیں دے پائے گا۔ محراب نے نظر پھیر کر موبائل اسکرین کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر اس کے رستے زخموں کو۔ تمہارے زخم رس رہے ہیں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ مدھم لہجے میں اس نے اس کی توجہ بٹانی چاہی۔ زارون اس پر فقط ایک نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ کل رات سے وہ جس تکلیف کے حصار میں تھا صرف وہی جانتا تھا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت اسے چیک اپ کے لیے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر فرحت نے تفصیلی چیک اپ کے بعد اس کی کلاس لینا ضروری سمجھا۔ کیا بات ہے مسٹر زارون، میں نوٹ کر رہا ہوں آپ صحت یاب ہونے میں دلچسپی لیتے نہیں دکھائی دے رہے۔ ڈاکٹر فرحت کے سوال پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ پتہ ہونے کے باوجود آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، پھر سے اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے علاج میں کوئی دلچسپی نہیں، کیوں آخر؟ وہ پوچھ رہے تھے، مگر زارون کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تبھی انہوں نے خاموش بیٹھی محراب سے کہا، ان کا خیال رکھیں مس محراب۔ جتنی لاپرواہی اپنے زخموں میں دکھا رہے ہیں ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی ٹانگ کے زخم جلدی خشک نہ ہوئے، یوں ہی بگڑتے رہے تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے، اور ٹانگ کاٹنے کا مطلب ہے ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو کر رہنا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا؟ اس صورت میں جب کہ ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ محراب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کے زخم خشک ہو جائیں تاکہ ہم انہیں مزید بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھجوا سکیں۔ جی ڈاکٹر، شکریہ۔ ان کی دواؤں کا خاص خیال رکھیں، ایک دن بھی ناگا نہ ہونے پائے۔ جی انشاءاللہ، وہ یہی کہہ سکتی تھی، وگرنہ حقیقت میں اسے زارون عبدالرحیم پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ گھر واپسی کے سفر میں زارون غیر معمولی سے زیادہ خاموش تھا۔ اس رات اس نے دوا لینے میں کوئی نخرہ نہیں کیا تھا۔ پوری رات وہ بیڈ کے کنارے پر ایک ہی کروٹ لیے چپ چاپ سویا رہا تھا۔ شاید غزالہ نے جو حرکت کی تھی اسے اس نے زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی سیو بھی بڑھ گئی تھی، مگر اسے جیسے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ بینک میں جو پیسے بچے تھے محراب نے اس کی دوائی اور کچھ گھر کے لیے راشن خرید لیا۔ اس روز ناشتے کے بعد وہ زارون کو دوا کھلانے کے بعد مریم بیگم کو بتا کر ہمدانی ہاؤس چلی آئی تھی۔ عائرہ ساتھ ہی تھی، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب کا گھر ان کے آفس کی طرح بے حد شاندار تھا۔ تقریباً 5 کنال پر بنا گھر کم کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ صفائی اتنی کہ ماربل کی ٹائلوں میں وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ چونکہ عائرہ اس کے ساتھ تھی، لہٰذا اسے گھر کے اندر تک جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اس گھر میں بے شمار نوکر تھے، مگر اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ کسی کو کسی دوسرے ملازم کے کام یا ذات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہمدانی صاحب ابھی گھر پر ہی تھے، لہٰذا عائرہ اسے ساتھ لیے ان کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم انکل، سب بخیر؟ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹے، بڑے اچھے وقت پر آئی ہو، میں ابھی آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ وہ چونکہ ٹائم کے پابند تھے تو آفس کے لیے لیٹ نہیں ہوئے تھے۔ عائرہ مسکراتے ہوئے وہیں لان میں ان کے سامنے کین کی کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی محراب کو بیٹھا لیا۔ میری دوست جاب شروع کرنا چاہتی ہے انکل، اسی لیے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ہمدانی صاحب کا وقت قیمتی تھا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ محراب اس دوران سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ہمدانی صاحب نے کہا، گڈ، جاب کا تو تم نے انہیں بتا ہی دیا ہے کیا کرنا ہوگا، بس میں چاہتا ہوں مجھے شہریار اور اس کی بیٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔
नहीं मिलेगी। मेरी दोस्त बहुत समझदार है, बड़े बड़े भूतों को काबू करके रखा हुआ है उसने। वो हंसी और मेहराब को उसकी ये हंसी पहली मर्तबा बड़ी अजीब लगी। भला उसकी खाने पकाने की जॉब से किसी को काबू करने का क्या ताल्लुक़ था? उसने दिल में सोचा। एक और बात का ख्याल रखना होगा, बिला ज़रूरत किसी भी मेल या फीमेल मुलाजिम या मुलाजिमा से बातचीत करने की कतई इजाज़त नहीं होगी। हमदानी साहब की तरफ से गोया वार्न किया गया था। मेहराब ने आहिस्ता से अज़बात में सर हिला दिया। उसे ज़रूरत भी क्या थी किसी से बिलावजा फ्री होने की? उसे तो सिर्फ़ अपनी तनख्वाह से मतलब था, बाकी हर चीज़ उसके लिए बेमाने थी। चलो ठीक है, मैं अब ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ, तुम आने जाने का वक्त बता देना उन्हें। अगले ही पल खड़े होते हुए उन्होंने गोया बात समेट दी थी। आयरा ने सर हिलाकर उन्हें इत्मीनान दिलाया। हमदानी साहब के वहाँ से रुखसत होने के बाद वो मेहराब की तरफ मुतवज्जा हुई। देखो मेहराब, हमदानी अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। यूँ समझो कि खुशनसीब लोगों को उनके यहाँ मुलाजिमत मिलती है, मगर एक बात है, उनके कुछ उसूल हैं, वो तुम्हें फ़ॉलो करने होंगे। कैसे उसूल? मेहराब को हैरानी हुई। सबसे पहला उसूल तो यही है कि बिला वजह किसी से दुआ सलाम नहीं करनी, और दूसरा उसूल, दौरान मुलाजिमत जो हुक्म तुम्हें अंकल या उनके बेटे की तरफ से दिया जाए तुम उसे फ़ौरन बजा लाओगी। कामचोर निकम्मे लोग अंकल को पसंद नहीं। और तीसरा सबसे अहम उसूल, तुम अपनी तरफ से जितनी मुद्दत या वक्त जॉब करना चाहो तुम उसकी पाबंद होगी कि इस वक्त के दौरान तुम मुलाजिमत छोड़ कर नहीं जाओगी, क्योंकि इस तरह फिर मालिक लोगों को मसला होता है, वो फौरी तौर पर नए बंदे का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ठीक है, काम क्या करना होगा मुझे? काम वही खाना पकाना। असल में हमदानी अंकल के पास 3-4 शेफ़ हैं, बेहतरीन खाना पकाते हैं, मगर तुम्हें बताया था ना उनका बेटा बड़ा खड़ूस है। ज़रा जो कोई चीज़ नाक तले आ जाए उसके और उसकी बेटी के, बस इसीलिए अंकल चाहते हैं कि कोई ऐसी ज़रूरतमंद सैफ मिल जाए जो उसके नखरे बर्दाश्त करे और जैसा वो कहे वैसा पका दे। खातीन का थोड़ा लिहाज करता है वो। कब से कब तक यहाँ रहना होगा? उसे ये जॉब कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। मजबूरी थी कि फिल वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, ये अहम सवाल है। तो ऐसा है मेहराब कि शहरयार भाई सुबह 4 बजे के करीब घर आकर सोते हैं तो 1 बजे तक उठकर नाश्ता करते हैं। उनकी बेटी की भी यही रूटीन है, तो तुम आराम से दोपहर के खाने की तैयारी करके आ सकती हो और शाम 4-5 बजे तक शहरयार भाई के घर से निकलते ही छुट्टी करके जा सकती हो। सिंपल। बीवी नहीं है उनकी? बीवी है, मगर दोनों साथ नहीं रहते। असल में शहरयार भाई की बीवी हमदानी अंकल के सबसे बड़े बिजनेस हरीफ की बेटी है। किसी ज़माने में दोनों दोस्त थे तो रिश्ता तय कर दिया, बाद में दुश्मनी हो गई तो रिश्ता भी ख़त्म। शहरयार भाई ने रिश्ता ख़त्म नहीं किया, अंकल के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने इस लड़की से शादी कर दी। 4 साल दोनों ठीक चले, बाद में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए तो छोड़कर चली गईं वो, और भाई यहाँ आ गए। बस इसी वजह से मिजाज भी सवा नेज़े पर रहता है उनका। काफ़ी दिलचस्प कहानी है। बस कहानियाँ तो तुम्हें रोज़ मिलेंगी यहाँ, मगर तुमने बस साबित कदमी से डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, और पीछे घर की फ़िक्र तो बिल्कुल नहीं करनी। मैं हूँ ना, मैं आंटी के लिए उनकी बेटी जैसी हूँ, एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी उन्हें। वो बात बात पर उसे तसल्ली दे रही थी। मेहराब की आंखें उसकी इस दर्जा मोहब्बत पर भर आईं। तुम कितनी अच्छी हो आयरा, समझ में नहीं आता कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इतना तो नायाब होती शायद वो भी मेरे लिए न कर पाती जितना तुमने किया है। तुम बहुत अजीम हो आयरा, आजकल ऐसे दोस्त मिलने नामुमकिन हैं। अब तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मेहराब के अल्फाज पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। मेहराब ने उसका हाथ चूम लिया
اس کی نظر میں وہ اس کے لیے واقعی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ طلوع شمس مفارقت ہے، پرانی کرنیں نئے مکانوں کی آنگنوں میں لرز رہی ہیں۔ فصیل شہر وفا کے روزن چمکتے ذروں سے بھر گئے ہیں، چمکتے ذرے۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار سبھی گلاب راتیں۔ بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزارے جتنیں ہزارے ماتیں۔ جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہے۔ گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں۔ یہ موڑ وہ ہے جہاں سے میرے تمہارے رستے بدل گئے ہیں۔ پرانی راہوں کو لوٹنا بھی ہماری تقدیر میں نہیں ہے کہ راستے بھی ہمارے قدموں کے ساتھ آگے نکل گئے ہیں۔ طلوع شمس مفارقت ہے، تم اپنی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے ستاروں کو موت دے دو۔ گئی رتوں کے تمام پھولوں، تمام خاروں کو موت دے دو۔ نئے سفر کو حیات بخشو کہ پچھلی راہوں پہ ثبت جتنے نقوش پا ہیں، غبار ہوں گے ہوا اڑائے کہ تم اڑاؤ۔ اس نے زارون اور گھر کے لیے جاب کی تھی اور جاب کے پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلط فیصلہ سرزد ہو چکا ہے۔ ہمدانی صاحب کی بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، شیطان کا سایہ تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے محراب کو کھپانا شروع کر دیا تھا، کبھی کھچڑی کھانی ہے تو کبھی پاستہ۔ وہ محنت سے بنا کر لاتی تو ایک چمچ کھاتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ بنا لحاظ اب کوئی اور ڈش بنا کر اس کے حضور پیش کی جائے، بات صرف یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر بھری پلیٹ کو ریجیکٹ کر کے وہ قیمتی قالین یا دیوار پر دے مارتی تھی، اور اس کی صفائی میں جو اسے جان کھپانی پڑتی وہ کوکنگ سے زیادہ محنت طلب تھی۔ عجیب بے بسی تھی کہ کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی کہ بچی کو اس کا بنایا ہوا کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی پوری محنت اور توجہ سے سب بنا رہی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ پہلے دن ریجیکٹ ہو کر گھر چلی جائے۔ وقت نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا، اس کے سارے راستے تاریک ہو گئے تھے۔ 3 بجے کے قریب شہریار سو کر اٹھا تو سب سے پہلے فکر اسے اپنی بیٹی کے کچھ کھانے پینے کی تھی، جو اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی موڈ آف کیے بیٹھی تھی۔ پری اسے آواز دیتا وہ کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پر وہ رو رہی تھی، اس کی جیسے جان نکل گئی۔ پری، کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ لمحوں میں اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے وہ جیسے بےقل ہوا تھا۔ پری کی شکایتیں شروع ہو گئی تھیں۔ بڑے پاپا نے پھر میڈ بدل دی۔ پاپا، مجھے اس کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ بس مجھے اچھی نہیں لگی ہو۔ کیوں اچھی کیوں نہیں لگی؟ کیا اس نے ڈانٹا آپ کو؟ نہیں، ڈانٹا نہیں، پر وہ مما جیسی دکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، آئی ہیٹ مما۔ اس نے اصل وجہ بیان کر دی۔ شہریار کے لب بھیج گئے۔ نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اس بے حس سے، جو ایک معمولی سی بات پر اس کی ساری محبت، سکھ و آرام کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی، مگر اس کی بیٹی کی نفرت شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی کہ اسے اس کا کوئی ہم شکل بھی پسند نہیں تھا۔ اوکے، میں آپ کے بڑے پاپا سے بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کو رکھ لیا انہوں نے۔ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ ہمدانی صاحب نے دوسری بیل پر اس کی کال پک کر لی۔ جی بیٹے، ہو گئی صبح؟ ہو گئی پاپا، مگر پری آپ سے ناراض ہے، رو رہی ہے۔ کیوں؟ دوسری طرف وہ بے چین ہوئے تھے۔ میڈ جو تبدیل کر دی ہے آپ نے، اس کی مجبوری تھی بیٹا، اس سے پچھلی جو لڑکی تھی پتھر کا باؤل دے مارا تھا پری نے اس کے منہ پر۔ شکر کرو آنکھ بچ گئی، مگر پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا۔ کسی بھی قیمت پر جاب کے لیے تیار نہیں تھی وہ۔ تم ہی بتاؤ کیا کرتا میں؟
उससे सॉरी कर लेते बड़े पापा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। परी ने मोबाइल के स्पीकर से निकलती उनकी आवाज़ सुन ली थी। मोबाइल अपने बाप के हाथ से लेते हुए वो बोली तो वो खुलकर हंस दिए। सॉरी की थी बेटे, मगर वो बहुत डर गई थी। अब जो नई आई है ना, ये उससे भी अच्छी है। मुझे अच्छी नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, बड़े पापा को थोड़ा टाइम दो, वही पुरानी वाली दोबारा आ जाएगी। खुश? जी पापा, मुस्कुरा कर कहते हुए उसने मोबाइल बाप को वापस कर दिया। इधर हमदानी साहब ने फ़ौरन आयरा को कॉल मिलाई थी। हाँ आयरा बेटा, 2 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब तुम अपने हिस्से का काम करना है, आप फिक्र न करें। इसी महीने की आखिरी तारीखों में मैंने अब्रॉड जाना है, जाने से पहले आपका काम हो जाएगा। नहीं, इतना इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। इतने दिन तक तो शहरयार का ससुर बेच खाएगा मुझे। उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में है। वो किसी भी वक्त मेरी साख और कारोबार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पास बस यही 1 हफ्ता है, जो भी करना है फ़ौरन करो और जान छुड़ाओ हमारी इस बला से। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ। 2 करोड़ उसके अकाउंट में आ गए थे। अब तो कुछ करना ही था उसे। पूरे 2 घंटों में उसने प्लान बनाया कि जिन जिन जगहों पर शहरयार की बीवी जाती है, पहले वो वहाँ उसके औकात कार का पता लगाएगी और फिर शहरयार की बेटी को मेहरा बनाकर वो मेहराब के कंधे पर बंदूक रखते हुए उसका निशाना ले लेगी। बज़ाहिर ये सब सोचना आसान लग रहा था, मगर हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। उसे इस मामले में बेहद मोहतात रहना था। आखिरकार किसी की जान लेना कोई आसान काम थोड़ी था। उस रात जॉब से वापसी पर वो ज़ारून के पहलू में आकर बैठी तो पहली बार बिस्तर पर उसकी मौजूदगी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। कोई था दुनिया में जिसे उसका तमाशा बनना बुरा लगता था। वो जाग रहा था। मेहराब उससे बिना कोई बात किए चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। तभी वो पूछे बगैर नहीं रह सका, कैसा रहा आज का दिन? मेहराब को उससे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कोई सवाल करेगा। तभी हैरानी से पलट कर देखा, जिसकी उदास निगाहें उसके वजूद पर टिकी हुई थी। वो उठकर बैठ गई। बहुत मुश्किल, मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये जॉब सिर्फ़ एक छोटी सी शैतान बच्ची को संभालने के लिए मिल रही है। क्या क्या नहीं पकवाया उसने मुझसे, मगर खाया कुछ भी नहीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसका गला घोंट देती। पहली बार वो उससे कुछ शेयर कर रही थी। ज़ारून को अच्छा लगा। माँ कहाँ थी उसकी? माँ नहीं है, छोड़कर जा चुकी है। ऐसी शैतान औलाद को पालना कोई आसान थोड़ी है। अच्छा, अपनी दोस्त को बताया तुमने? बताया है, मगर उसका एक ही जवाब है, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने ये जॉब दिलवाई है ना? हाँ। कब से जानती हो इस लड़की को? जब से इस घर में आई हूँ। कौन कौन है उसके घर में? पता नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। करती क्या है? नहीं पता। तो पता क्या है आखिर? वो तुम्हारे सारे मामलात में शामिल है और तुम्हें उससे मुताल्लिक कुछ पता ही नहीं। शाबाश है तुम्हें। वो खफा हुआ। मेहराब को भी महसूस हो गया कि उसकी गलती है। तभी सर झुकाते हुए बोली, अब मिलूंगी तो सब कुछ पूछ लूँगी। लड़की बुरी नहीं है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, ये वक्त बताता है। देखा नहीं तुम कितना एतबार करती थी गज़ाला पर, मगर क्या सिला मिला? सारी उम्र के लिए मुझ जैसा एक नापसंद शख्स तुम्हारे गले पड़ गया। जो बदनामी हुई वो अलग, और कतई बेकसूर होते हुए जो सज़ा मिली वो अलग। जब नहीं सीखा तुमने अपनी इस गलती से। वो सही कह रहा था। मेहराब की हिम्मत न हुई कि वो सर उठा सके। दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है मेहराब। तुम एक शफ़ाफ मोती हो, मगर ये मुआशरा कीचड़ है। इसीलिए मैं तुम्हें खुद से भी छुपा कर रखना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम कितनी मासूम और बेवकूफ़ हो।
मुझे तो इस जॉब में भी उसका कोई मुफाद नज़र आ रहा है, वगरना आजकल 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए लोगों की जूतियां घिस जाती हैं, और उसने तुम्हें पलक झपकने में 40,000 की नौकरी दिलवा दी। वाह, कमाल हो गया। वो तल्ख हो रहा था। मेहराब ने दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ीं। वो ऐसी नहीं है, तुम उसके बारे में गलत गुमान कर रहे हो। वो बस मेरी मदद करना चाहती है और कुछ नहीं। चलो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुबह कोर्ट जाना है, जब उठो तो मुझे भी साथ ही उठा देना। कोर्ट क्यों जाना है? अब उसने चौंक कर देखा। ज़ारून ने सिगरेट सुलगाया। पेशी है, गजाला ने केस किया है मुझ पर नान नफ़के का। नान नफ़का तो उसका और बच्चे का हक है। हाँ, अगर बच्चा अपना हो और बीवी तुम्हारे जैसी अल्लाह मियाँ की गाय हो तो। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बच्चा? हाँ, मगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हारा उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ था। जो कुछ भी था तुमसे निकाह से पहले था। तुम्हें अपनाने के बाद उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, और ये बात वो जानती है, इसीलिए बदला ले रही है। चलो, अल्लाह कामयाब करे, किन अखियों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेहराब ने उसके इस जुमले को भी अपनी समझ और शक के मुताबिक लिया। उसकी नज़र में वो किसी सूरत गजाला से दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं था। जहाँ गजाला से अलीदगी की बात आती, वो पहलू बचा लेता था। अंदर कहीं चोर होगा, ऐसे ही उसके लिए बहन नहीं मरवाई मेरी, जलकर सोचते हुए उसने फिर करवट बदल ली थी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उसे अपने सामने ज़ारून की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत आंखें खोलकर पूछा, खाना खा लिया तुमने? हाँ, और तुमने? बमुश्किल वो जवाब दे पाई थी, मुझे भूख नहीं है। क्यों? पिछले 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। उस दिन डॉक्टर फरहत कितना गुस्सा कर रहे थे, याद है ना तुम्हें? जल्दी ठीक होने के लिए वक्त पर खाना भी ज़रूरी है, नसीहत भरे लहजे में कहती वो उठ खड़ी हुई। जब ज़ारून ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। अब हाथ का ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? बेहतर है? मैं खाना लाती हूँ, तुम खा लो। फ़ौरन ही उसने हाथ छुड़ा लिया था। उस रात ज़ारून ने ज़बरदस्ती उससे बहुत सारी बातें की। फिर वो तो सुकून की नींद में सो गई, पर ज़ारून रात भर जागता रहा। अगली सुबह ज़ारून मेहराब के उठाने से पहले उठ गया था। वो जो नमाज फ़ज्र के बाद सोई थी, अब ताख़ीर से उठने पर खासी शर्मिंदा थी। चुपचाप बिस्तर से उठकर वॉशरूम में घुस गई। अच्छी तरह फ्रेश होकर बाहर आई तो ज़ारून उसी का मुंतज़र था। चची ने नाश्ता बना लिया है, तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े निकाल दो, थोड़ा पानी दे दो, मुँह हाथ धो लूँ, फिर कपड़े बदल लेना। ठीक है। दुपट्टे से गीला चेहरा खुश्क करती वो असबात में सर हिलाते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपनी पसंद से उसने ज़ारून के लिए कॉटन का नीला सूट निकाला, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये रख दो, वो वाला ब्लैक सूट जो नज़र आ रहा है वो लाओ। इम्पोर्टेंट कपड़े वाला ब्लैक सूट वो 3 माह पहले दुबई से लाया था और शहर के सबसे महंगे टेलर से फुल फैशन में सिलवाया था। इस वक्त इस लिबास के लिए उसकी पसंद ने मेहराब को जैसे आग लगा दी। हद हो गई है, उस औरत ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया तुम्हें, मगर तुम्हारे दिल में अब भी उसकी मोहब्बत के चश्मे उबल रहे हैं। वो बिला वजह अदालत में घसीट रही है तुम्हें, और तुम तैयार होकर अब भी उसे दिखाने के लिए इस कदर बन ठन के जा रहे हो जैसे पेशी न हुई बारात हो गई। ब्लैक सूट अलमारी से निकालते हुए वो बड़बड़ाई तो ज़ारून मुस्कुरा दिया। तुम्हें कोई मसला है? मुझे कोई मसला क्यों होने लगा? मेरी बला से जान दे दो उस पर, वो चिढ़ कर बोली। तुम चल रही हो साथ? ज़ारून ने मुजीद लुत्फ़ लिया जब वो तिनक कर बोली, नहीं,
इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, फिर कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। सुबहान अल्लाह, अभी 9 नहीं बजे और तुम्हें देर हो रही है। बड़ी बेताबी है उससे मिलने की तुम्हें। अब के सुलग कर कहते हुए उसने कपड़े बेड पर पटक दिए थे। मेरा तो ख्याल है सारी रात नींद ही नहीं आई होगी तुम्हें अदालत जाने का सोच कर। अदालत 9 बजे खुल जाती है और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी 1.5 घंटे का सफ़र तय करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसने रोका है। मैं तो कहती हूँ नाश्ता भी वहीं उसी धोखेबाज के साथ कर लेना। क्या पता केस वापस ले ले अपना। तुम दुआ करो केस वापस ले ले, क्योंकि तलाक उसे मैं नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तो ना दो, मुझे क्यों सुना रहे हो। इस बार लहजा पहले से ज़्यादा जलाली था। ज़ारून ने मुस्कुराहट छुपा ली। तुम्हारी दुआएं बहुत कबूल होती हैं इसलिए। हाँ, बहुत कबूल होती हैं। कबूल होती तो आज तुम्हारे साथ नसीब फूट ना रहे होते मेरे। अंदर कहीं आग लगी थी। वो खिलखिलाकर हंस दिया। सर उतारते हुए ज़ारून ने जानबूझकर उसे तंग किया। ज़ारून ने फिर मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए खुद को उसके रहम व करम पर छोड़ दिया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो नाश्ता कर रहा था जब मेहराब ने पूछा, वापसी कब तक होगी तुम्हारी। कोई पता नहीं, शाम हो जाएगी। क्यों, मिस करोगी तुम मुझे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसके मुस्कुरा कर देखने पर वो फिर जली। ज़ारून को उसका ये रूप बेहद अच्छा लगा। तैयार होकर उसने अपने दोस्त को कॉल कर दी थी। वो गाड़ी ले आया तो मेहराब ने पूछा, बाहर कैसे जाओगे, व्हील चेयर तो है नहीं। तुम तो हो ना, ले जाओ उठाकर। वो कहाँ बाज आने वाला था। मेहराब घूर कर रह गई। ओ मन वज़न है तुम्हारा, मेरी इतनी जान नहीं कि तुम्हें उठा सकूं। 2 मन वज़न है तुम्हारा, मेरी इतनी जान नहीं कि तुम्हें उठा सकूं। तो बना लो, किसने रोका है। तुम्हें देर नहीं हो रही अब। कमरा समेटते हुए उसने तंज किया तो वो मुस्कुरा दिया। देर तो हो रही है, मगर तुमने जानबूझकर बातों में लगाया हुआ है। तुम जाने दोगी तो जाऊंगा ना। जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। इतने गुस्से से क्यों मैं कह रही हो। लगता है सुबह सुबह मिर्चें चबा ली हैं। तुमने नहीं जाना। मेरा ख्याल है मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वो जच हो गई थी। ज़ारून खिलखिलाकर हंस दिया। मेहराब के कमरे से निकलते ही उसने दोस्त को कॉल की। वो गाड़ी से व्हील चेयर ले आया था। बेड से कुर्सी पर उसने उसे मुंतकिल किया, फिर वहीं उसे लेकर बाहर आ गया। मेहराब ने किचन की खिड़की से उसे जाते देखा था और फिर उसके लिए दुआ की थी। नावल वो जो इश्क था आपको कैसी लग रही है, अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी जो रहा वो कल इंशाअल्लाह। वो जो इश्क था नॉवेल कैसी लगी, अब तक की पूरी कहानी आपको, अपनी राय ज़रूर दें। इसके बाद क्या होता है मेहराब अब्दुल करीम की ज़िंदगी में, सुनते हैं कल इंशाअल्लाह।